एग्रीकल्चर से इंटरव्यू में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वो ये है कि व्हाई इज इन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? टेल। Agriculture is important for India. Okay. First thing, agriculture will ensure our food security. Second thing, it will ensure the livelihood of farmers. Third thing, it is important for the development of the secondary and tertiary sector in the in industry. For example, the food processing industry, it will contribute in food processing industry. It has the potential to remove the malnutrition and hidden hunger issue in our country. And India has the potential to export, so it will also boost our export sector, so that will contribute in our improving the current account deficit. ठीक है. You can tell. You can also add basically like livelihood, okay, food security. It also act as a raw material for food processing industries. Basically, it can contribute export basically, and also it is a source of women empowerment. क्योंकि agriculture employs large scale women in India basically, so that is also important. So you have to keep your answer very crisp and multi-dimensional. ऐसा नहीं कि आप एक मिनट में जो है ना वही चीज़ें बोल दीजिए. आपको बोलना उसी एक मिनट में ही है वही 2-3 लाइन, लेकिन क्या है ना उसी में आपको हर डायमेंशन को कवर कर देना है. मतलब एक पॉइंट सोशल का, एक पॉइंट ज्योग्राफी का, एक पॉइंट पॉलिटिकल का, तो इसलिए कि मतलब कि जो है ना मतलब इसके पास जो है ना मल्टी डायमेंशनल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है. और यही वो चेक करेगा बेसिकली. वो आपसे शॉर्ट आंसर ही पूछेगा, हर क्वेश्चन का आंसर वो शॉर्ट जाना चाहेगा. हाँ, अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो. What are the major types of agriculture in India? Agriculture, yes. Agriculture can be of subsistence type of or commercial level. And shifting cultivation could be another type. Shifting cultivation. Then? Or animal rearing. और truck farming example. हो जाएगा क्या? Truck farming is not a type. बस यही हो गया ना, I think so. नहीं, subsistent farming, commercial farming, plantation farming, mixed farming, organic farming, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग, ये सब टाइप है. ये तो बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए जी. ये तो एग्रीकल्चर आपका जो है ना कोर आइडिया होना चाहिए. ये चूँकि ये इकोनॉमी भी है, जोग्राफी में भी एग्रीकल्चर एक अलग से चैप्टर ही दिया है बेसिकली. ऑप्शन में तो और डिटेल से दिया होगा. व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग? Subsistence farming simply refers to that cultivating that much which is needed for the survival and fulfillment of the family food requirement. Basically means farmers own consumption. The farming mainly for the farmer own consumption is called basically subsistent farming, household consumption basically you can say. And this is what most of the Indian farmer who are small and marginal, they practice this system only, right? Subsistent farming. What is commercial farming? Commercial farming's main motive is for profit. So when the cultivation is done at a large scale for profit motives. Commercial farming and plantation farming both are same thing. It could be. No. Same. क्योंकि I think commercial farming is a broader term which includes the plantation in it. So what is plantation farming? Plantation farming mainly basically deals with the plantation of the land. So it is a process where the land is cultivated. So when the cultivation is done at a large scale for profit motives. Plantation farming is a broader term which includes the plantation in it. So what is plantation farming? So what is plantation farming? Plantation farming mainly basically deals with the
large scale commercial farming, the coffee plant we are raising, coffee plantation. Why they are called plantation farming, I am asking. Like plantation farming because it is grown at a large tract of land, which is mostly hilly tract. Really, this is called plantation farming. Be specific here. Be specific here a little bit. देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना ट्रैप करेंगे, जहाँ भी उनको जो है ना सिमिलर टर्म लगा ना, तुरंत जो है ना वहाँ पे बोलेंगे कि इसको वेरीफाई करो। देखिए प्लांटेशन फार्म बेसिकली जानते क्या है, ये बेसिकली कैश क्रॉप होती है, ठीक है, कैश क्रॉप और जनरली मोनोकल्चर होती है। ये इसके दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये मोनोकल्चर होगी जनरली, और एक कैश क्रॉप होगी बेसिकली, अब कैपिटल इंटेंसिव होगी। इसके 3 फीचर जरूर ध्यान रखिए, ये पूछ सकता है यूपीएससी। फर्स्ट ये कैश क्रॉप होगी जनरली, फिर बहुत ज़्यादा इसमें कैपिटल लगेगा, और थर्ड थिंग क्या है, मैंने क्या बताया, ये मोनोकल्चर यानी प्रैक्टिस होती है ये। मतलब कभी कभी शुगर केन ही, कभी कभी कॉटन ही कॉटन है, ऐसा होता है बेसिकली ये। तो ये 3 चीज़ जो है ना बेसिकली जो है ना, ये प्लांटेशन फार्मिंग की कोर मतलब फीचर्स हैं। अगर पूछता है कोर फीचर्स हैं, ये कोर फीचर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली एक टर्म है जो कि मार्केटिंग करने के लिए क्रॉप्स का यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो उस मार्केटिंग में क्या है ना कि सब्सिस्टेंट फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, कोई भी क्रॉप आ सकती है। प्लांटेशन फार्मिंग स्पेसिफिक है बेसिकली, ये कैश के लिए ही होती है बेसिकली, कैश क्रॉप ही होती है, इसको सेल करने के लिए बेसिकली उगाया जाएगा। और ये कैपिटल इंटेंसिव होगी, और इसमें जो है ना ये जनरली मोनोकल्चर इन नेचर होती है। व्हाट इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर? Intensive agriculture means when we are intensifying the productivity of a land through the use of fertilizers and some inputs like by increasing the irrigation tools. Basic motive is to increase the per hectare yield of land. Means intensive agriculture means use of high inputs of labor, fertilizer, technology over a given area basically. This is called intensive. Just for example in India, rice and wheat cultivation in the Indo-Gangetic plain. तो यहाँ भी क्या है ना इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंडिया में मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो है ना इंटेंसिव ही है, क्योंकि लोग क्या है लेबर ज़्यादा लग जाते हैं, इनपुट ज़्यादा लगा देते हैं, फर्टिलाइजर ज़्यादा लगा, क्योंकि ज़मीन कम है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड कम है पर राइट पर इंडिविजुअल पर कैपिटा अगर देखें तो इंडिया में लैंड कम है ना, तो इंडिया में जो है ना इंटेंसिव एग्रीकल्चर ही मोस्टली होती है 95% मान लीजिए। अगर पूछता है हाँ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें लो ओवर इनपुट होते हैं पर यूनिट ऑफ लैंड। ये जनरली जो है ना ये कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील यहाँ फॉलो किया था, जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है और है ना जो है ना एक लोग के पास जो है ना 100 एकड़ का लैंड है, आराम से उगा दिए हैं, हो गया। तो ये होते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बेसिकली। ये जनरली डेवलप कंट्री के पार्ट हैं धाने के, मतलब जितने डेवलप कंट्री वाले इसको जनरली प्रेफर करते हैं और वो ग्रो करते हैं। व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न? क्रॉपिंग पैटर्न Cropping pattern refers to the cultivation of crop in a certain pattern. For example, it could be relay cropping or it could be parallel mixed cropping. नहीं, क्रॉपिंग पैटर्न डिफिनेशन है मास्क में। It refers to the proportion of area devoted to different crops in a particular region. Different crop. For example, if I may say that कि my family grows only rice, wheat and maize, तो that is a cropping pattern I am telling you.
मतलब डिफरेंट क्रॉप्स इन ए पर्टिकुलर रीजन एंड पीरियड, दिस इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न सिंपली स्पीकिंग. पैटर्न मीन्स कि which all kind of crops you are going in a particular region in a particular season basically. This is called cropping pattern basically. This is what. Then what is crop rotation? Crop rotation simply means rotating the crops multiple times in a year. For example, in order to retain the fertility of the moisture. In a year or same land. Same on land. same land. Year here does not matter. On same land you are growing different crops sequentially basically. Sequentially. So this is called crop rotation. For example, rice, then wheat, then pulse in same land. After harvesting rice, then pulse, then wheat, like that. So है ना, तो गलती नहीं करना, कंसेप्चुअल नहीं करना है. यहाँ पे सेम लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोलना. क्रॉप रोटेशन मतलब सेम लैंड में हम लगातार जो है सीक्वेंस से क्रॉप उगा रहे हैं. जैसे खरीफ चल रहा था, अभी राइस है, अभी आएगा विंटर सीजन तो वहाँ पे हम व्हीट उगा लेंगे. फिर क्या है ना कि आएगा जात तो वहाँ पे मैं अनियन उगा लेंगे. इसे बोलते हैं क्या है, बेसिकली क्रॉप रोटेशंस कर रहे हैं. अगर ऐसा हो कि केवल राइस पूरी ईयर उगा रहे हैं तो मतलब फिर से बोलते हैं मोनो क्रॉप कल्चर बेसिकली. Why are pulse important in crop rotation? Pulses have the capability of because pulses have the capability of nitrogen fixation, so it will provide nitrogen to the soil. Basically they improve soil nitrogen through biological nitrogen fixation basically. That's why कि if you have grown rice na, so after that you must grow pulse actually, people say. Scientists have said that basically कि like gram, pigeon pea, I mean these are very important crops to grow to at least once a year pulse has to be grown in a particular land if you want to fix it, if you want to increase soil nitrogen basically. So that is, but India does not have that much awareness. That is also problem. What is mixed farming or mixed cropping? Not farming, mixed cropping. Mixed cropping usually refers to cultivation of crops along with the livestock. No, this is mixed farming. You are saying mixed cropping. मैं mixed cropping पूछ रहा हूँ. So mixed cropping that means growing the crops. Growing two or more crops simultaneously on same land. फॉर एग्जाम्पल मैं व्हीट को भी लगा दूँ, साइड में मैं ग्राम को भी, चना को भी लगा दूँ. इसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड फार्मिंग होती है जो बता रहे थे कि है ना कि मैं एग्रीकल्चर भी कर रहा हूँ साथ में जो है ना मैं लाइव स्टॉक पोल्ट्री ये सब भी कर रहा हूँ साथ में बेसिकली, जो बाद में वही इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बन जाता है बेसिकली. तो इसे बोलते हैं क्या, जो है ना मिक्स्ड क्रॉपिंग. तो ऐसे टर्म जो है ना गलती नहीं करना है बेसिकली, वे कुछ जो है ना क्लियर होना चाहिए. टर्म बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं वो, ध्यान रखिएगा. मुझसे टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत सारे हैं. तो टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो है ना ये टर्म्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये है. अब जैसे एक है इंटर क्रॉपिंग. व्हाट इज इंटर क्रॉपिंग? Intercropping means in between the crops we are growing some of the fodder material so that the nutrient. Fodder material? No, that is not intercropping. Growing different crop together in a plant row. For example, in one row soybean, in other row pigeon pea, then soybean, then pigeon pea, like that जी. वो जो आप बोल रहे हो अलग चीज़ है. इंटर क्रॉपिंग बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि एक क्रॉप एक रो में, मतलब एक लैंड है ना, तो उसमें एक बना देते हैं वो रो. तो एक रो में सोयाबीन हो गया, फिर उसके नेक्स्ट वाली रो में पिजन पी, फिर सोयाबीन, फिर से पिजन पी. ये मैंने देखा है हमारे एरिया में. इसे बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग. मतलब क्रॉप किया, क्रॉप इंटर मतलब कि अंदर मतलब बेसिकली. देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या था, मिक्स्ड क्रॉपिंग में ये था कि ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम लैंड है. इसका मतलब ये नहीं है कि इंटर क्रॉपिंग हो. इंटर क्रॉपिंग में ये जरूरी है कि इसमें मतलब कि आपने एक रो लगाई है सोयाबीन का, तो उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली जो रो होनी चाहिए वो दूसरे क्रॉप की होनी चाहिए. ये हो इंटर क्रॉपिंग. और इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग में ये है कि मतलब आप आधा कर दीजिए ना, आधे लैंड में जो है ना आप व्हीट उगा दीजिए, और आधे लैंड में जो है ना आप बेसिकली जो है ना वो उगा दीजिए, वैसे अलग क्रॉप्स को ही.
तो उसमें फील्ड का ही डिवीजन कर देते हैं। और इसमें क्या है ना कि डिवीजन नहीं करते, उसमें क्या है ना बस रो को डिवाइड कर देते हैं कि हाँ इस रो में ये रहेगा, इस रो में ये रहेगा। ये है बेसिकली, ये मैंने देखा है। हाँ, यूपीएससी ये भी पूछ सकता है, मतलब वो लोग, कि मिक्स्ड क्रॉपिंग के पर्पज़ क्या है और इंटर क्रॉपिंग के पर्पज़ क्या है, बताइए। ऐसा क्यों किया जाएगा, बताइए। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्यों किया जाएगा और इंटर क्रॉपिंग क्यों किया जाएगा? क्योंकि क्यों ज़्यादा पूछते हैं, वाई, बताइए। Mixed cropping का purpose ये रहेगा कि मतलब जो if to reduce the chances of the crop failure. If if any diseases comes on the one crop, so other will be intact. And intercropping is generally to maintain the soil nutrient levels and moisture level. मिक्स्ड क्रॉपिंग ठीक है, हाँ, मतलब रिड्यूस रिस्क करने के लिए। मान लिया कि कोई पेस्ट अटैक हो गया तो एक ही क्रॉप को ख़त्म करेगा, दूसरी क्रॉप तो बच जाएगी ना, इसलिए। और इंटरक्रॉपिंग का पर्पज़ क्या है, जानते हैं कि जो रिसोर्स का जो यूज है ना और प्रोडक्टिविटी और अच्छे से हम कर सकें। इसलिए क्या है ना कि एक रो में हम सोयाबीन उगाएंगे, एक रो में जो है ना हम ये उगाएंगे बेसिकली। हाँ, बेसिकली तो ये होता है इंटरक्रॉपिंग। मतलब हमारा जो रिसोर्स है, लैंड है, प्रोडक्टिविटी है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो है ना हम करते हैं इंटरक्रॉपिंग। और मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, मतलब कि हमको रिस्क को रिड्यूस करने, जैसे मतलब मानसून ख़राब हो गया तो मतलब एक क्रॉप जो है ना हम रेनफेड लगाएंगे और एक क्रॉप जो है ना हम रेनफेड नहीं लगाएंगे, ताकि अगर रेनफॉल हुई तो एक क्रॉप तो बच जाएगी ना, अगर नहीं हुई तो तब भी क्रॉप बच जाएगी। तो इसे कहें कि हमारा रिस्क कम हो जाएगा। पता चले कि एक ही सारी क्रॉप लगा दिए, पेस्ट अटैक हो गया, सारी क्रॉप एक साथ ख़राब हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना फार्मर्स के लिए। तो ये जो है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वाई इज राइस इम्पोर्टेंट इन इंडिया? Rice is a staple crop which provides essential nutrient in our diet. एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइस इज ए स्टेबल क्रॉप, ठीक है। और जानते क्या है इंडिया के लिए, जानते क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट इसे फेवर करता है ना, इसलिए आपको बताना है कि जो है ना कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इसको सूट करता है टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव में, वाटर के रिस्पेक्टिव में, मानसून और रेनफॉल के रिस्पेक्टिव में। इसलिए कहें राइस इंडिया का ये बहुत स्टेबल क्रॉप पहले से भी रहा है और अभी भी है बेसिकली। वाई डज पंजाब प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटी ऑफ राइस डिस्पाइट बीइंग नेचुरली लेस सुटेबल देन ईस्टर्न इंडिया? Punjab have received the benefits of the Green Revolution, so due to which it has irrigation facilities along with the chemical fertilizers. So due to which it is able to maximize its yield. ग्रीन रेवोल्यूशन तो ठीक ही है। ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले भी जानते कहीं पंजाब अच्छा था इसमें, जानते क्यों? क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट का बिल अच्छा है, प्रोक्योरमेंट लेवल अच्छा है, चूँकि दिल्ली के पास है, सब्सिडी अच्छी मिल जाती है गवर्नमेंट से, और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र शुरू से ही वहाँ अच्छा है ना। तब ना फिर सोचा कि यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन लाया जाए बेसिकली। तो मेन रीज़न जो है ना पहले से भी वहाँ चल रहा था, मतलब कहीं ना कहीं पोलिटिकल। वैसे भी पंजाब जो है ना ये ऐसा एक टाइम पे पंजाब को जो है ना ये जो है ना पंजाब को अन्नदाता बोला जाता था पूरे इंडिया का बेसिकली। और ये पहले से भी शायद ऐसा नहीं कि अभी भी ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हुआ है, पंजाब पहले से भी बहुत ज़्यादा, मतलब एग्रीकल्चर स्टेट है ही पंजाब वो बेसिकली। अब अभी भी जाएंगे ना बहुत हरियाली है भाई पंजाब में, मतलब लोग जो है ना बड़े बड़े खेत बनाए हैं वहाँ। हालांकि जो है ना वो मतलब लैंड साइज होल्डिंग भी अच्छी है, मतलब एज कम्पेयर टू एमपी यूपी बिहार। वहाँ जो है ना एक लोग के पास बढ़िया बड़े बड़े खेत होते हैं। मैं एक बार गया था चंडीगढ़ ना, तो भाई बहुत अच्छा सिटी है, अच्छा मतलब है यार उधर पंजाब साइड में गया था तो न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अच्छा है मतलब पंजाब से। मतलब जैसे मैंने एमपी आप कब चले गए थे पंजाब घूमने के लिए? नहीं, मेरा एक दोस्त था वहाँ का, हरियाणा का। तो हरियाणा का वो शिमला साइड का था, अरे नहीं सॉरी हिमाचल प्रदेश का था, शिमला साइड का। तो एक्चुअली उसके बहन की मैरिज थी तो बुलाया था एक्चुअली। ये मैं गया था कब है 2024 में तो नवंबर के आसपास गया था।
तो गया था शिमला। फिर लौटते हुए हम लोग सोचे कि चलो, हम लोग यहाँ से 5-6 लोग गए थे, मतलब वो थोड़ा क्लोज ही फ्रेंड था, मतलब पीजी का फ्रेंड था। तो बेसिकली क्या है ना कि हम लोग गए थे, फिर बढ़िया 4-5 दोस्त यहाँ से। फिर लौटते समय सोचे चलो चलो चंडीगढ़ घूम लेते हैं, तो वही पंजाब साइड हम लोग आए थे फिर। तो भाई चंडीगढ़ में रुके भी थे, मतलब अच्छा मतलब है। मैंने देखा एक डिफरेंस ना कि जो है ना, जैसे एमपी यूपी में देखा है मैंने एग्रीकल्चर ना, लेकिन वहाँ का एग्रीकल्चर थोड़ा सा अलग ही टाइप का मुझे लग रहा था। मतलब बड़े बड़े खेत बढ़िया, और इरीगेशन फैसिलिटी बहुत हाई है वहाँ की, बहुत हाई। मैंने देखा तो वहाँ स्प्रिंकल इरीगेशन जो है ना लगे हुए थे बिल्कुल। हाँ मतलब से अच्छा, तो तभी तो भाई जो है ना वहाँ ज़्यादा आजकल जो है ना अच्छा प्रोडक्टिविटी दे रहा है पंजाब बेसिकली। तो मेजर रीज़न वही है कि जो है ना कि वहाँ जो है ना लैंड साइज होल्डिंग अच्छी है फार्मर की। तो इससे क्या है ना कि उनका जो है ना अच्छा हो जाता है, मतलब कमाई उसी से। तो ये है बेसिकली। लेकिन एक दिक्कत यही है कि पंजाब में कहीं ना ग्राउंड वाटर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है चूँकि लोग क्या ना राइस बहुत ज़्यादा उगाते हैं, और कहीं ना पूरा रात भर मोटर चला देंगे, पूरा पानी ख़त्म हो रहा है, वहाँ का इकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ मैंने देखा है कि हर जगह मोटर लगा हुआ था वहाँ। हाँ तो क्या कहीं ना कहीं जो है ना, चूँकि एक तो पंजाब वैसे भी रेनफॉल कम ही गेन करता है साउथ वेस्ट मानसून से, चूँकि उधर जाते जाते पूरा पानी खत्म हो जाता है, पूरा इरीगेशन पे डिपेंडेंट है। 80% जो है ना यहाँ इरीगेशन नहीं डिपेंडेंट है पंजाब बेसिकली। तो बहुत ही ना इकोलॉजिकल स्ट्रेस है बेसिकली, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन बहुत ज़्यादा है पंजाब में। ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट है। वाई यार मिलेट्स इम्पोर्टेंट? Millets are important for multiple reasons. First thing, it is drought resistant, so it could be cultivated in dry region. Then second thing, it has essential nutrient, so it will provide a solution for the malnutrition which India is facing. Then it is an environmentally sustainable crop. इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल क्रॉप, क्लाइमेट रेजिलिएंट बोल सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है। It is a short duration crop, and also it requires low water. That's why. So if it has so much benefit, then why it does not grow enough millets? There are multiple challenges because procurement is low from the government side. Second thing, it is not a part of the daily dietary habits because it is perceived as a poor man's food. The second thing, processing difficulties is there, and taste preference of the people. High market price is not available here, so these are some market presence is low. So these are certain regions. That's why. So it comes under MSP. Jowar, bajra, ragi. This comes under the MSP, but the procurement as comparison to wheat and rice is low in this crop. So what we can do in this? What you can do? We can approach Indian brand of millets at the international level. For example, we celebrated International Year of Millets. Then we can enhance the procurement of at MSP. Then we can invest in R&D and we provide seed diversification. In short, seed diversification. We will run some awareness campaigns in order to consider it as such a प्रोक्योरमेंट लेवल, हाँ सबसे मेन चीज़ यही है ना, क्योंकि वाई पीपल आर ग्रोइंग राइस इन व्हीट मोर, बिकॉज दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट है ना, गुड प्राइस है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ गिवन गारंटी दैट आई विल परचेज। इन द सेम गवर्नमेंट शुड आल्सो गारंटी फॉर द परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस मिलेट्स, सो पीपल विल ग्रो बेसिकली। What is the basic difference between drip irrigation and sprinkle irrigation? Drip irrigation mostly irrigate at a particular
particular point where the root of the plant is located. There is a sprinkler. Sprinkler spreads the water in surrounding its region. That is first thing, the major functional difference. Second, the sprinkler is little bit, it could be costly as comparison to drip irrigation. No, drip irrigation is more costly. Because there is a pipe needed na in root of every plant. So drip irrigation is more costly. Okay. Sprinkle irrigation has a problem of what? What? Marshy land, and it can cause what? Soil erosion. Waterlogging kind of situation. Waterlogging, soil erosion as well. Because it just like artificial rainfall basically. Sprinkle. Means rainfall is happening from your side basically. If you see the photo, sprinkle irrigation, you will understand basically. So tell the three biggest soil types in India in chronological order. I mean in arrangement from highest to low. Okay. The largest, the highest is alluvial soil Then and black soil. it's black or red? Black soil. Black. Sure. Yes. Then Then red soil. then Then red and yellow red and yellow soil. laterite soil is not there. After red and yellow soil, laterite soil will come. Why is black soil suitable for cotton? Cotton requires water retentive soils. And, Water, not moisture retention capacity. Okay. Because black soil has good moisture retention capacity and it's rich in clay. And cotton is good growing in basically clay and moisture retention capacity. That's why. How can farmer reduce soil erosion? Farmer can reduce soil erosion through planting trees, because through the construction of the shelter beds around the farms. Then If it is in the hilly area, so we can do counter bunding terrace farming. It will help in soil erosion, reducing soil erosion. Then we can create some bunds in the plain areas in order to reduce that. Soil erosion could be. Contour farming. What is contour farming? Contour farming is basically creating bonds or terrace-like structure in the hilly area. It's contour farming. And what is mulching? Mulching is covering the palm with the leaves or some twigs of the plant in order to reduce the moisture loss of the soil. So mulching, cover crops, contour farming, crop rotation, agroforestry, all these are the major basically जो है method to reduce the soil erosion से. So you should directly tell contour farming, cover crops, mulching, crop rotation, agroforestry, conservation tillage, minimum tillage. All these things can lead to the reduction in soil erosion basically. What is the difference between fertilizer and manure? Fertilizer is mostly chemical in nature, like No, DAP. we cannot say it is chemical in nature. What? Organic fertilizer can also be there. Okay. Mostly, that's why I said mostly.
No. This is not the difference. It is chemically manufactured in the Fertila- Fertilizer basically is a concentrated source of a specific nutrients which is made in the factories. It can be chemical as well as organic. But manure is a organic material derived from the plant and animal sources basically. So this is manure. So always be see. These are the very general terms basically. I mean, if one listens, they can say, what is this simple question? But speaking in front of them na becomes a challenge. Listen. So clear concept. But don't say fertilizer is a chemical in nature. Fertilizer are specific concentrated source of nutrients basically, which is manufactured basically. It can be both of organic or basically chemicals. Manure is basically organic materials derived from the plants and animal sources. That is basically. Hmm. What is a NPK? nitrogen, phosphorus, आवाज. and potassium. Hmm. NPK is the ratio of the nutrient like nitrogen, phosphorus, and potassium, which is needed for the plant's growth. Basically, these three are the major plant nutrients basically. Nitrogen, phosphorus, and potassium basically. Hmm. What was the biggest achievement of Green Revolution? Green Revolution biggest achievement. Increase in productivity of the हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी. very good here. It is supplemented and increases in yield of the crops. हेलो. Hello. हाँ बोलिए बोलिए. आवाज नहीं आ रही बोल रही हूँ. नहीं आ रही आपकी आवाज़. धीम आ रही है. Increase in the productivity of the area, productivity of the crops, and converting our country from a food deficit to food surplus nations. Basically, the biggest achievement of Green Revolution is to help India move from food shortage towards food sufficiency basically. This is the biggest, but it has various limitations as well. Groundwater depletion, soil stress, ecological problems. What should be the next agricultural revolution, sir? Next agricultural revolution should be like evergreen revolution, which is a concept given by Swami Swaminathan, who said that now we should focus on sustainable agriculture, where we need to focus on zero budget farming, organic farming, and sustainable farming. Through the use of natural Climate resilient, technological farming, value addition farming, diversified agriculture. All the other feature basically of next green revolution or next agricultural revolution. What is the problem with the present MSP system? बताइए प्रेजेंट एमएसपी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? system problem is major problem is the concentration procurement of the crops and few sector only like rice and wheat. This is Okay, one problem then. More. second thing.
some small farmer are not able to utilize the benefit. Only large farmers are able to utilize the benefits basically. So it has basically asymmetric benefits. Hmm. Concept is mostly used by mostly in some states like the western and the southern states. Some states is okay, but basically mostly what this is used by mostly large farmer because they have better facilities to sell. But small farmer even they do not have that much awareness, digital awareness, how to approach the government, how and all. So basically they have to sell their crops at the below MSP even sometime. This is the problem basically. Hmm. What is APMC? APMC stands for the Agriculture Marketing Processing Ag- Centers. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, APMC पूछ रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी क्या है ये? These are the countries where crops are procured by the government. गवर्नमेंट So, नहीं, APMC में गवर्नमेंट परचेस करती है। traders and हाँ, traders ट्रेडर्स दे आर बिजनेसमैन, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट। तभी तो इशू हो रहा था इसको लेकर के, क्योंकि फार्मर को अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है, इसमें जो मिडिल मैन है पूरा पैसा खा रहे हैं। अब देखिए फार्मर से वो खरीदते हैं 10 रुपये किलो टमाटर, मिडिल मैन, और फिर जाके बेचते हैं मार्केट में कितने रुपए, 25 रुपये किलो। तो मतलब यहाँ पे कंज्यूमर को भी लॉस हुआ और प्रोड्यूसर यानी फार्मर को भी फायदा किसको हुआ, उसी मिडिल मैन को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी APMC की। तभी तो सरकार ने इसको 2020 में क्या किया है, बंद कर दिया है APMC को। हालांकि कुछ स्टेट में APMC वो भी होता है ना कि वहाँ पर गवर्नमेंट की वजह से सरकार हमारे यहाँ पे सरकारी बना हुआ है जहाँ से लोग बेचते फार्मर्स और फिर गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट नहीं करती, वो MSP वाला आप बोल रहे हैं यहाँ पे, वो MSP मंडी है। APMC जो है ना, ये बेसिकली क्या है ना कि ये बेसिकली ये स्टेट जो है ना अपने मतलब जो है ना ये पहली बात ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये स्टेट का है। हर स्टेट अपने अपने है ना उससे मतलब इसको बनाए हैं बेसिकली। तो कहीं इसमें क्या ना प्राइवेट प्लेयर का होता है पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट नहीं इसमें इंटरफेयर नहीं करती थी बेसिकली। तभी तो 2020 में गवर्नमेंट इसको हटाने का ट्राई की APMC को बेसिकली। तो लेकिन जो बड़े फार्मर थे जिनको इससे फ़ायदा होता था उसको अपोज करते थे, जैसे पंजाब हरियाणा के, कि अगर ये हट गया तो मेरा जो मिडिल में वाला जो कमाते थे ब्रोकरी वो ख़त्म हो जाएगा बेसिकली। तो ये बेसिकली हालांकि गवर्नमेंट ने इसको हटा भी दिया है, जो है ना बहुत सारे स्टेट से हट गया है अभी ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो मिडिल मैन थे ना बिचौलिए बहुत ज़्यादा पैसा खाते थे बीच में, बहुत ज़्यादा है। सीधे डबल, जैसे मान 10 रुपये किलो टमाटर खरीदेंगे फार्मर से और जाके बेच रहे हैं मार्केट में 25 रुपये किलो, 15 रुपये डाट जो है ना। हाँ, जबकि कुछ काम नहीं, बस यहाँ से लेकर के वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, बस हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या थी इसमें APMC में। ये मैंने देखा भी है ना, हमारे उधर जो है ना साइड था एक मंडी बड़ी सी APMC में, लोग ले जाते थे वहीं भेजते थे जो है ना। वहीं बहुत सारे ब्रोकर्स वहाँ रहते हैं, पहले से एक कार्टेल बना लेंगे वो कि इससे ज़्यादा नहीं लेना है फार्मर से। जैसे मान लो फिक्स बना कि 15 रुपये किलो लेना है आलू, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब बेचारे फार्मर्स वहाँ से लाए हैं घर से अपने, तो बेचने पड़ेगा उनको बेचारों को, क्या करेंगे। तो ये है, कहीं जानते इंडिया में लॉज बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया में लॉज नहीं है, पॉलिसीज नहीं है भाई। गवर्नमेंट खाली है लॉ पॉलिसी बनाती रहती है, दिक्कत क्या है कि उसका रियल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में यही है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं रहती ना, बात ये है। कोई बढ़िया अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला आदमी हो, कैसा क्यों नहीं हो रहा है, क्या कैसे, तो खुद ही जैसा अपने आप अच्छा से काम होने लगेगा। आपको पता है ना भी वो तुकाराम, क्या नाम है उसका, महाराष्ट्र वाला IAS, क्या नाम है उसका, तुकाराम क्या नाम है उसका। अरे अभी इसमें न्यूज़ में नहीं चल रहा है वो, ये कहाँ रहते हैं आप जी, पूरे YouTube में पूरे न्यूज़पेपर में आ रहा है लगातार वो, इतना अच्छा काम किया है वो। अरे उसका ऐसे तुकाराम कुछ नाम है, महाराष्ट्र का है। तो उसका जो है ना
मोर देन 25 ट्रांसफ़र हो चुका है, और जो 2005 बैच का IAS ऑफिसर है। तो उसने क्या है ना कि जो है बहुत सारे जांच के बहुत सारे जो है ना ये जो फेक पनीर मिल रही है ना, पनीर वगैरह बहुत खाते हैं आप लोग मार्केट से लेकर के ना, भाई सब फेक पनीर आ रही है, ध्यान रखिएगा भाई। उसने पूरे महाराष्ट्र में जो है ना पनीर बैन करवा दिया है। हाँ भाई, उसमें डालिए उसका नाम, इसमें भाई छाया हुआ है भाई, इसका एग्जाम्पल लिखिए। ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में कि आपको क्या ओपिनियन है जो है ना यहाँ से। और यहाँ तक कि इसको आप केस स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेटर काम किया, यहाँ तक का ऐसा ऑफिसर कोई नहीं किया है। इसको बहुत सारे धमकी मिले थे, लेकिन फिर उसने जो है ना कभी जो है ना कुछ नहीं किया है। बेसिकली बहुत सारे जो है ना ये फूड अडल्ट्रेशंस, वाटर प्रॉब्लम्स है ना, फेक पनीर, बहुत सारे इसने बैन करवा दिया। बहुत सारे कैंटीन बहुत सारे बैन करवा दिया, हाई कोर्ट के कैंटीन बैन करवा दिया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्राइस लेते थे लोग। पढ़िए उसको। अच्छा हाँ, तुकाराम मुंडे ऐसे कुछ नाम है उसका ऐसे, हाँ तो उसको पढ़िए भाई। ऐसे कहीं ना कहीं जो है ना कम से कम 1-2 अफसर तो ऐसे हैं भाई, कम से कम मोटिवेशन मिलती है कि हाँ अच्छे लोग भी हैं समाज में, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है बेचारा, बहुत अच्छा। उसको पढ़िए आप, ये पक्का इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इसके बारे में आपसे, क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है। थोड़ा बहुत क्या है ना अवेयरनेस रखिए जी। और देखिए क्या है ना, स्टेटिक देखिए वही है, लेकिन क्या है ना कि अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। जो है ना कि कहना कि क्या चल रहा है मार्केट में, कौन क्या चल रहा है। हाँ, इसमें ज़्यादा इंडल्ज मत होइए कि वो लोग क्या है उस पर या फिर रिसर्च करने लगते हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि अवेयर रहे कि क्या कहाँ पे अच्छा, कहाँ पे बुरा काम हो रहा है, तब ना आप उसको अच्छे से अपने आंसर्स में इंडल्ज कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट ने उससे बोला, मतलब जब उसने बहुत सारे कैंटीन्स जो है ना मार्केट्स के, हॉस्पिटल्स के, और फिर पनीर वगैरह बैन करवा दिया, तो हाई कोर्ट बुलाता है उसे, बोलता है कि है ना आप केवल प्राइवेट सेक्टर में ही इंटरफेयर करते हैं कि कहीं गवर्नमेंट में भी जाते हैं, वहाँ जांच करते हैं। तो बोला ठीक करते हैं ना। हाई कोर्ट से उसने स्टार्ट कर दिया है, और हाई कोर्ट अगले दिन हाई कोर्ट का कैंटीन बैन करवा दिया है। हाँ बोलो कोई बात नहीं, चलिए आपके हाई कोर्ट से स्टार्ट कर देता हूँ। सीधे जज से बोल दिया था। जज बोला कि आपके प्राइवेट सेक्टर में ही वो करते हैं, जाते हैं वहाँ जांच पता करते, बोलते सर ऐसा नहीं है, मैं कल जो है ना आपके हाई कोर्ट से स्टार्ट करता हूँ। और सही उसने किया, सुबह बैन करवा दिया हाई कोर्ट के कैंटीन को ही। बहुत डिस्कस्ड है इसमें इस समय, पिछले 15 दिन से बहुत डिस्कस्ड है इस अफसर को। यूट्यूब में भी है, बहुत सारा है उसका, न्यूज़पेपर में नाम वो सब आ चुका है बहुत सारा। तो ये यहाँ से केस स्टडी पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं बेसिकली जो है कि वाई आर स्मॉल फार्मर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, बताइए। Small farmer are vulnerable to climate change because first thing, their land holdings are low, so due to the effect of the climate change, the productivity will be low. तो प्रोडक्टिविटी है ना, लेकिन वो वाई दे आर मोर वल्नरेबल। क्योंकि उनके पास क्रॉप ही लिमिटेड है। तो जब क्रॉप ही लिमिटेड है, तो अगर वो ख़राब हो गई क्लाइमेट चेंज के कारण, फिर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा कोई बड़ा फार्मर है तो ठीक है भाई, उसके पास बहुत सारे लैंड है, तो कोई क्रॉप खराब हो गई, कोई क्रॉप बच गई, फिर उनके पास क्या है ना कि प्रोक्योरमेंट लेवल अच्छा है, जाके मार्केट से अच्छी टेक्नोलॉजी से खरीद लेंगे बहुत सारी चीज़ें, जिससे क्रॉप खराब नहीं होगी। लेकिन फार्मर के पास कोई वही नहीं है, मतलब बेसिकली जो है ना बेसिक इनकम ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है बेसिकली। दैट्स व्हाई दे आर मोर वल्नरेबल बेसिकली, ऐसा बता सकते हैं। आपके यहाँ खेती होती है थोड़ा बहुत? आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ पर भी है खेत, घर का है, घर पर। तो अच्छा कितने एकड़ लैंड है? क्या है हमारे यहाँ ना एकड़ वाला 2.5 एकड़ हमारे। अच्छा हाँ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप उगाते हैं अपने खेत में और क्या कैसे है सिस्टम, वो सब पूछ सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा कि जो है ना कि
फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? FPOs. FPOs are kind of cooperative societies which ensures which enhance the collective bargaining power of the farmers and raise their voices and raise farmers' interest and concerns in front of government. हम्म, तो इसको लीगल स्टेटस मिला इंडिया में? No. मिला है जी, लगता है रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। हाँ, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर तो रहेगी, वो रजिस्टर्ड तो रहेगी, उससे हो जाएगा। हाँ, तो उसको फिर लीगल तो बोला जाएगा ना। लीगल का मतलब क्या होता है कि कहीं रजिस्टर्ड हो बेसिकली, तो यही तो है ना जी फिर। ऐसा है। तो देखिए यही है, देखिए मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, देखिए यही से क्वेश्चन जो है ना पूछा जाएगा मोस्टली। हाँ, अगर कोई चीज़ न्यूज में है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसको अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो बेसिकली। स्कीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे जितनी भी स्कीम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके टारगेट्स क्या है, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, यहाँ से कुछ ई नेम के लिमिटेशंस क्या है, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेसिकली, ये है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और बाकी तो ठीक ही हो गया जो है ना।